وفاق اور سندھ حکومت کا نہروں کا مسئلہ مذاکرات سے حل کرنے پر اتفاق۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی ہدایت پر رانا ثنا کا وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن سے فون پر رابطہ۔ رانا ثنا نے کہا نہروں کے معاملے پر سندھ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ نہروں کے معاملے پر سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا اور وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا نہروں کا مسئلہ بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کو دریائے سندھ سے نہریں نکالنے پر شدید تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی نہروں کے معاملے پر وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ساتھ چلنے پر اتفاق۔ لاہور میں دونوں پارٹیوں کی بیٹھک۔ پانی کی تقسیم، زراعت، بلدیاتی انتخابات سمیت کئی معاملات پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا ملکی حالات کے پیش نظر ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے۔ کینالز کے معاملے پر بھی ہماری قیادتیں مل کر بیٹھیں گی، ایک موقف سامنے لے کر آئیں گی۔ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کو بھی ذمہ دار قرار دینا قومی المیہ بن چکا ہے۔ نون لیگ کے رہنما ملک محمد احمد خان بھی حسن مرتضیٰ کے ہم آواز۔ کہا سندھ کا حق ہے کہ وہ اپنے پانی کی حفاظت کرے، پانی پر سندھ کے تحفظات دور ہونے چاہیے، اس میں کچھ غیر فطری نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دو مختلف جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے، اس کی رائے مختلف ہوتی ہے تو اظہار جلسوں اور باہمی ملاقاتوں میں ہوتا ہے، اس میں اچنبے کی کوئی بات نہیں۔ گرین پاکستان منصوبے کے تحت 2 نہریں سندھ میں، 2 پنجاب میں اور 1 بلوچستان میں بننی ہیں۔ وفاقی وزیر آبی وسائل معین وٹو کا انکشاف۔ کہا نہروں کا معاملہ غلط فہمی اور مشاورت نہ ہونے کے باعث تنازع کا شکار ہوا۔ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اب یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا۔ لاہور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہر صوبہ اپنے حصے کے پانی کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ نجی اسکیم کے تحت 67,000 عازمین حج پر جا سکیں گے یا نہیں؟ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا واضح جواب دینے سے گریز۔ کہا بھارت اور بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک کے شہری بھی اس سال حج سے محروم رہ گئے ہیں، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں، نا امیدی گناہ ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں سردار یوسف نے کہا کہ ٹور آپریٹرز نے جو رقم ریکارڈ میں جمع کرائی ہے وہ واپس ملنا ٹور آپریٹرز کا حق ہے، لیکن جو رقم ریکارڈ یا پروسیجر سے ہٹ کر ہے اس کا نقصان ٹور آپریٹرز کو بھرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ انسداد پولیو ویکسین کے قطرے پلائے۔ تقریب سے خطاب میں کہا ماضی قریب میں پولیو نے ایک بار پھر سر اٹھایا ہے، تمام والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، انسداد پولیو ٹیم سے بھرپور تعاون کریں، اجتماعی تعاون سے پولیو کے اس ناسور پر جلد قابو پا لیں گے۔ جن علاقوں میں سیکیورٹی ایشوز ہیں وہاں ویکسینیشن کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں نے امریکہ ایران مصالحتی کوششوں پر بھی بات چیت کی۔ اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی کہ یہ کوششیں امن و ترقی کا باعث بنیں گی۔ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق، علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ کابل میں پرتپاک میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اسحاق ڈار کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا عمان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے دوطرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق عمان کے ساتھ روابط مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کل روم میں ہونے والے مذاکرات میں دونوں وفود علیحدہ کمروں میں بیٹھے۔ عمان کے وزیر خارجہ نے پیغامات کا تبادلہ کیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کا تیسرا دور آئندہ ہفتے عمان میں ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شیخ عبداللہ بن زاید ال نہیان کا استقبال کیا۔
शेख अब्दुल्ला बिन जायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बार फिर बारिश और जालाबारी। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे साइज के ओले गिरे, किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत अप्रैल के मामूल के दर्जा हरारत से 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहा। कराची 23 अप्रैल तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहने का इम्कान है। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 43, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और मिट्टी में 42, डेरा गाजी खान में 40, लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पीटीआई के इंटरनल एहतसाब कमेटी में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति को मुबैना करप्शन पर क्लीन चिट देने पर इख्तलाफात। कमेटी के रुकन मुसद्दिक अब्बासी ने काजी अनवर की जानिब से रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर भी एतराज़ कर दिया। काजी अनवर ने तस्लीम किया कि 3 रुकनी कमेटी के रुकन मुसद्दिक अब्बासी इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं कि बाबर सलीम स्वाति ने करप्शन नहीं की। काजी अनवर ने यह भी तस्लीम किया कि कमेटी के SOPs के मुताबिक रिपोर्ट सिर्फ बानी PTI को भेजी जा सकती है, लेकिन सलमान अकरम राजा ने रिपोर्ट मांगी थी, इसलिए उन्हें भेज दी। कमेटी ज़राए का कहना है कि कमेटी के दीगर 2 अरकान मुसद्दिक अब्बासी और शाह फरमान दोनों ही रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर नाला है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। अफगान शहरियों को वापस भेजा जा रहा है। कोई भी मुल्क किसी गैर मुल्की को गैर कानूनी क़याम की इजाज़त नहीं देता। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अफगानिस्तान खुशाइंद है। नहरों का मसला मुश्तरका मफादात कौंसिल के ज़रिए हल किया जाए। मीडिया पर बयानात के बजाय आइनी फोरम का इस्तेमाल करना होगा। तलाल चौधरी ने कहा कि नहरों के मसले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान राबता हो गया है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सियासी और माशी इस्तेहकाम मुतासिर हो। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का यकजहती गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कुछ लोग यहाँ से इसराइल जाकर वादे करके आए, बताया जाए उन्हें किसने पाकिस्तान से इसराइल भेजा था। मुस्लिम हुक्मरान फ़लस्तीन के हक़ में निकलने वाले अमरीका और यूरोप के तुलबा से सबक सीख लें। हाफिज नईम ने पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुक्मरान सोए हुए हैं, लेकिन ये उम्मत सोई हुई नहीं है। अगर मार्च की कॉल दे दें तो कोई अहलकार या कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। नेतन्याहू पर दबाव डालने के लिए अमरीका पर दबाव डालना होगा। हाफिज नईम ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए 26 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल करने का ऐलान भी किया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने खिताब करते हुए कहा, मुल्क में आईन व कानून नहीं, चादर चार दीवारी महफूज नहीं। हमें झूठा बयानिया दिया जाता है कि मईशत बेहतर हो रही है। हमें भाषण दिया जाता है कि भूल जाओ इंतखाबात और आइन, ज़मीन से सोना निकाल कर मईशत बेहतर करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा का कहना था कि हुक्मरान फ़लस्तीन के मामले पर खामोश हैं। ये मुस्लिम उम्मा का इम्तिहान है। मुस्तफ़ा नवाज कोकर ने कहा कि वफाक को आज जितने खतरात लाहक हैं पहले कभी नहीं देखे। सिंध में नहरों पर एहतजाज है। मादनियात बिल से गिलगित बल्तिस्तान भी इर्तियाश का शिकार है। MWM के नौ मुंतखब सदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि फेडरेशन की मजबूती आइन व कानून पर अमलदारी से मुमकिन है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ बबरलो बाईपास पर वकीलों का धरना तीसरे रोज भी जारी। पुलिस और रेंजर्स ने बंद किया गया रेलवे ट्रैक खुलवा दिया। कराची बार के सदर का धरने पर हमले और फायरिंग का भी इल्जाम। कराची बार ने मुबैना फायरिंग के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। वकीला का कहना है कि किसी सूरत यहाँ से नहीं जाएंगे। मुजवज़ा केनाल्स के खिलाफ हैदराबाद और लाड़काना समेत सिंध के मुतादिद शहरों में शटर डाउन हड़ताल। बदीन में कौमी अवामी तहरीक की रैली। अयाज लतीफ़ वलीजो ने खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी केनाल्स की हामी है, उन्हें इख्तदार इस बुनियाद पर मिला है। केनाल्स समरी पर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए थे, सदर जरदारी ने कर दिए। कराची में सिंध पटिशन फोरम का मार्च। जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर ने खिताब किया।
मटियारी में नए कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ कौम परस्त जमातों का कौमी शाहराह पर दिया जाने वाला धरना खत्म। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। दोपहर से दिए गए धरने के बायस दोनों ट्रैक बंद रहे, गाड़ियों की कतारें लग गईं। रानीपुर और सखर के दरमियान जानवरों से भरे दर्जनों ट्रक भी ट्रैफिक में फंसे रहे। महकमा आपाशी ने बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा कच्ची केनाल को बहाल कर दिया। केनाल से डेरा बुगटी की 50,000 एकड़ ज़रई अराजी को पानी की फराहमी शुरू। सूबाई सेक्रेटरी आपाशी ने कहा कि बलूचिस्तान भर में नहरी निज़ाम की फल सफाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। RD 245 के मकाम पर मेन पट फीडर केनाल की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। नहरों की सफाई का काम 5 मई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब जाने वाले भिखारी माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर को यकीन दहानी। मुलाकात में बताया कि भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की गर्ज से पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। इंसदाद मनशियात और इंसदाद स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आएँ। सऊदी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता। UN अमन मिशंस में पाकिस्तान के भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि वफाक और पंजाब में नून लीग के साथ हैं। वफाक के खिलाफ जो साजिश करेगा उसके खिलाफ चट्टान बनकर खड़े होंगे। पार्टी रहनुमा उस्मान मलिक से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम सूबों और इदारों को मनसूबों के लिए ऑन बोर्ड होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक अली परवेज़ मलिक ने आइंदा बजट की तैयारी में तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। सऊदी अरब में उमरा ज़ायरीन की बस को हादसा, 3 ख़वातीन समेत 5 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाँ बहक। सऊदी रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला बहावल नगर से था। बस में सवार दीगर मुतादिद ज़ायरीन जख्मी हुए। किसान इत्तेहाद के खालिद खोकर ने कहा है कि मरियम नवाज के कहने पर गंदम काश्त कर ली, लेकिन अब तक वज़ीर आला पंजाब ने किसानों और काश्तकारों से मुलाकात तक नहीं की। ऐसा ही रहा तो किसान अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक बनाया गया। वजारत उसको दी है जिसे ज़राअत का कुछ पता ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों को गंदम की फसल का रेट नहीं मिल रहा, अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लो, हमें अपनी उजरत चाहिए। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं रहा। कोयटा में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का 58वां कॉन्वोकेशन। कायम मकाम गवर्नर अब्दुल खालिद अजज़ई की फारिग तहसील तमाम डॉक्टर्स को मुबारकबाद। कहा, कोई मसला ऐसा नहीं जिसे हल नहीं किया जा सकता। मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान की महरूमियों को ख़त्म करेगी। हकीम उल उमूर मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात पूरे अक़ीदत और एहतराम से आज मनाया जाएगा। अल्लामा इकबाल के यौम वफ़ात पर सदर मुमलिकत का उनकी सियासी और फ़िक्री खिदमात पर ख़राज अक़ीदत। कहा, अल्लामा इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअल राह हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में पैगाम इकबाल पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। मरकज़ी मुस्लिम लीग के तहत कराची में शोहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुक़र्रीन ने कहा, गज़ा के नौजवान आज़ादी की तहरीक में तन्हा नहीं, अहले गज़ा को पैगाम देते हैं कि हम उनके साथ हैं। कॉन्फ्रेंस से हमास रहनुमा नाजी अल ज़हीर ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तानी भाइयों का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा करते हैं। फ़तह फ़लस्तीनी अवाम का मुक़द्दर है, इसराइल मुजरिम और इंसानियत का कातिल है। कराची प्रेस क्लब के बाहर इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एहतजाज। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहिरा। मुक़र्रीन का आलमी बरादरी से इसराइली मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा।
शुरा का फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। फ़लस्तीन और गजा के नाम पर लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फूड चेन पर हमले मनसूबाबंदी के तहत सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद गिरोह हमले कर रहा है। हमले बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए। इन फूड चेन में 25,000 पाकिस्तानी मुलाजिम हैं। हमलों में एक पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुआ। हमलों में मुलव्विस 149 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके। इसराइल की गजा में बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले। मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइली टैंक, बुलडोज़र और ड्रोन तबाह कर दिए। रफ़ा में गुज़िश्ता माह इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा तिब्बी अमले के 15 कारकुनों की हलाकत। इसराइली फ़ौज ने हमेशा पेशा वराना नाकामी कबूल कर ली। डिप्टी कमांडर को बरतरफ करने का कह दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गजा में जंग जारी रखने की हठधर्मी बरकरार। हमास ने आर्जी जंगबंदी की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अदाकारा एंजेलिना जूली ने गजा के बेबस इंसानों की हिमायत में सामने आ गई। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने गजा को फ़लस्तीनियों और उनके मददगारों के लिए इज्तमाई कब्र में तब्दील कर दिया है। इसराइल ने गजा पर बर्री, बहरी और फ़ज़ाई हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं। इसराइली फ़ौज ने लोगों को ज़बरदस्ती बेघर किया, जानबूझकर ज़रूरी इमदाद रोकी। एंजेलिना जोली की पोस्ट पर इंतहा पसंद यहूदियों को तन बदन में आग लग गई। अमरीकी अदाकारा की पोस्ट पर गम और गुस्से का इजहार करने लगे। एंजेलिना जोली आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ले के मौके पर दुखी इंसानियत की मदद के लिए पाकिस्तान भी आई थी। HPL PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुसलसल चौथी कामयाबी। कराची किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। नेशनल स्टेडियम में होम टीम 7 विकेट पर 128 रन बना सकी। टिम साइफर 30 रन के साथ नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 17 गेंदों पहले 4 विकेट पर पूरा कर दिया। कप्तान शादाब खान ने 2 विकेटें और 47 रन प्लेयर ऑफ द मैच बने। इवेंट में आज कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया की जानिब से मुल्तान में स्क्वाड के लिए इशाइया और गोल्फ की सरगर्मियों का एहतमाम। इशाइया में गैर मुल्की खिलाड़ियों समेत पूरी टीम और मैनेजमेंट ने शिरकत की। इशाइया के बाद खिलाड़ियों ने करीबी गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेली। लाहौर कलंदर्स की टीम मैनेजमेंट का कहना है कि तकरीब का मकसद खिलाड़ियों को तफरीह के मौके फराहम करना है। PSL के हर मैच पर खिलाड़ियों के माहिराना तज्जिए। क्रिकेटर फवाद आलम और अहमद शहजाद का हर टीम का पोस्टमार्टम। मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले। प्रोग्राम हारना मना है, देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाइड टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तान की 4 खिलाड़ी शामिल। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना को क्वालिफाइड टीम ऑफ द टूर्नामेंट की कप्तान मुकर्रर किया गया है। मुनीबा अली, निशरा सिंधु और सादिया इकबाल भी टीम में शामिल। बांग्लादेश की शर्मीन अख्तर और निगार सुल्ताना, वेस्ट इंडीज़ की हेली मैथ्यूज़, आलिया अलीन और शनील हेनरी, स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस और कैथरीन फ्रेजर शामिल। लाहौर में खेले जाने वाले विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान विमेन टीम नाकाबिल शिकस्त रही थी। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया का शानदार आगाज। पहले ही मैच में मेजबान मुल्क को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने 159 रन का हदफ 20 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरा T20 कल खेला जाएगा।
ڈیرہ اسماعیل خان میں جاری 3 روزہ ڈیرہ جات جیپ ریلی اختتام پذیر۔ آخری روز 25 ریسرز مقابلے میں شریک ہوئے۔ پریپیئرڈ اے کیٹیگری میں نادر مکسی 69 کلومیٹر کا فاصلہ 44 منٹ 18 سیکنڈز میں طے کر کے فاتح قرار پائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ رنگا رنگ اختتامی تقریب میں رقص اور گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے سما باندھ دیا۔ تاریخی بوسٹن میراتھن آج ہوگی۔ امریکہ میں ہونے والی تاریخی میراتھن کے 129ویں ایڈیشن میں دنیا بھر سے 32,000 رنر حصہ لیں گے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے 18 رنرز بھی شامل۔ پاکستان کے کم عمر ترین 23 سالہ امین مکاتی بھی دوڑیں گے، جبکہ جمال خان، نزار نیانی، دانش الہی، عدنان گاندھی، ہیرا دیوان، یسرا بخاری کی نظریں 6 سٹار فنشر بننے پر مرکوز۔ فیصل شبی اور دانش الہی شلوار قمیض میں دوڑ کر منفرد اعزاز حاصل کرنے کے لیے پرعزم۔ 4 پاکستانی خواتین بھی ریس میں حصہ لیں گی۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری نے ایسٹر کا تہوار منایا۔ ویٹیکن کے سینٹ پیٹرز اسکوائر پر ایسٹر کا مرکزی اجتماع۔ طبیعت خرابی کے باعث پوپ فرانسس کی مختصر شرکت۔ ایسٹر پیغام میں غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ برطانیہ کے شاہ چارلس اور ملکہ کی ونزر کاسل کے چرچ میں ایسٹر دعائیہ تقریب میں شرکت۔ روسی صدر پوتن نے ماسکو کیتھیڈرل میں آرتھوڈاکس ایسٹر تقریب میں شرکت کی۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کی وجہ سے مسیحی برادری کا ایسٹر دوسرا سال بھی افسردہ رہا۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام کے مسیحیوں کا پہلا ایسٹر۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، سڑکوں پر میوزیکل بینڈ کی پرفارمنس نے ایسٹر کی خوشیوں کو دوبالا کیا۔ یونان میں ایسٹر کے موقع پر گرجا گھروں کی دلچسپ راکٹ جنگ۔ صدیوں پرانی روایت میں مقامی قصبے کے آرتھوڈاکس گرجا گھر گھریلو ساختہ راکٹ سے مخالف گرجا گھر کے بیل ٹاورز کو نشانہ بنا کر ایسٹر کی خوشیاں مناتے ہیں۔ پنجاب میں فلموں کی تیاری کے لیے امدادی رقوم کی فراہمی کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کمیٹی کی کنوینر ہوں گی۔ کمیٹی فلم سازوں اور فلم ساز کمپنیز کی درخواستوں کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کی پہلی فلم سٹی، فلم اسٹوڈیو، پوسٹ پروڈکشن لیب اور فلم سکول کے قیام کی منظوری دے دی۔ منصوبے کے ڈیزائن اور دیگر اقدامات پر پیش رفت کا پہلا جائزہ بھی مکمل۔ جیو ٹی وی پر نشر ہونے والی 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل ڈائن کے چرچے سرحد پار پہنچ گئے۔ بھارتی فلم انڈسٹری کی مایہ ناز اداکارہ ممتاز ڈرامہ سیریل کی مداح نکلی۔ کہا مہوش حیات اور احسن خان کی اداکاری نے 4 چاند لگا دیے، ڈائریکٹر نے کمال کر دکھایا۔ اور فواد خان کی بالی ووڈ میں ری انٹری۔ فلم ابیر گلال کا دبئی گلوبل ولیج میں میوزک پریمیئر۔ فلم کا گانا ریلیز کر دیا گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی کی شرکت۔ حالیہ انٹرویو میں فلم میں فواد کے مد مقابل پرفارم کرنے والی بھارتی اداکارہ وانی کپور نے انہیں اپنا پسندیدہ ساتھی اداکار قرار دیا۔ کہا وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک اور تعاون کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بہترین رہا۔ اداکارہ سے ایک لفظ میں ان کی تعریف کرنے کو کہا تو بولی فواد بہت چارمنگ ہیں اور بڑی اسکرین کے لیے ہی بنے ہیں۔